بھارت کے اندر 33% کمی واقع ہوئی اور پاکستان میں 20% کمی واقع ہوئی، یعنی 1/3 کم نقصان ہوا ہمارا بنسبت بھارت اور بنگلہ دیش کے۔ اور ہم نے یہ دیکھا، جو ابھی ہم نے جائزہ لیا، کہ معیشت پہ بھی کم نقصان ہوا اور صحت کے لحاظ سے بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا اور بہت بہتر حالات ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا، اور 3 چیزیں میرے خیال میں اگر حکومت کی 2 سالہ کارکردگی پر وفاقی وزراء کی جانب سے میڈیا بریفنگ جاری تھی۔ اب وقت ہوا ہے ہیڈ لائنز کا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہوگا۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں 10 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ کابینہ اجلاس میں ملک کی سیاسی، معاشی اور سلامتی کے امور پر غور ہوگا، جبکہ امارات اور اسرائیل معاہدے اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ سعودی وزارت دفاع کی جانب سے انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ آرمی چیف نے کمانڈر جوائنٹ فورسز اور چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حامد سے ملاقات کی۔ پاکستان اور سعودی عرب کی عسکری قیادت کے درمیان ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان فوجی تعلقات اور مشترکہ مشقوں سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فون رابطہ کیا۔ سابق وزیر اعظم نے مولانا فضل الرحمان کو بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے اور کہا ہے کہ آئندہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا، مشترکہ حکمت عملی طے کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ نون لیگ کو میں اپنے بہت قریب سمجھتا ہوں۔ وائٹ ہاؤس کے مشیر جیریڈ کشنر نے کہا کہ امریکہ فی الحال اسرائیل کے مغربی کنارے کے انضمام کے منصوبے کی منظوری نہیں دے گا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جیریڈ کشنر نے کہا کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے معاہدے اور خطے میں امن کی کوشش کے پیش نظر امریکہ کچھ وقت کے لیے اسرائیل کو انضمام کی منظوری نہیں دے گا۔ انہوں نے کہا کہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل نئے تعلقات اور نئے اتحادیوں پر توجہ دے اور ہماری نظر نئے معاہدے پر ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے مزید 617 کیس رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد ملک بھر میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 13,633 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا سے مزید 15 اموات ہوئی ہیں۔ اب تک کورونا سے متاثر 2,70,009 مریض صحتیاب بھی ہو چکے ہیں۔ پاکستان اور انگلینڈ کے مابین ساؤتھمپٹن میں کھیلا جانے والا دوسرا ٹیسٹ میچ ڈرا ہو گیا۔ میچ کے 5 دن بارش سے متاثر ہوئے، جس کے باعث 2 اننگز بھی مکمل نہ ہو سکی۔ پاکستانی وکٹ کیپر محمد رضوان کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ آئی سی سی نے خراب روشنی کے ضوابط میں تبدیلی کا عندیہ دے دیا۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم بالائے خیبر پختونخوا، بالائے پنجاب، اسلام آباد، کشمیر، گلگت بلتستان اور زیریں سندھ کے اضلاع میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ وفاقی وزراء کی میڈیا بریفنگ جاری ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ جو ہے وہ لوگوں کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے۔ پاکستان کے اندر جو ہے وہ فیڈرل نظام ہے، اور عمران خان صاحب تو ہیں وہ تو سولو پلیئر ہیں، وہ دوسروں کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے۔ ہاں بالکل عمران خان جو ہے وہ دوسروں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے این آر او دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ہوں گے۔ لیکن جو ملک کی قوم کی ضرورت ہے اس کے اقدامات کے اندر وہ جس طریقے سے پروونشل گورنمنٹس کو، جس طریقے سے ریاست کے تمام اداروں کو ساتھ لے کر چلے اس کووڈ کے کرائسس کے اندر، اس کی بھی پاکستان کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ آپ سب لوگوں نے پاکستان کے کرائسس، آپ نے زلزلے بھی کور کیے ہوئے، آپ نے فلڈز، سیلاب بھی کور کیے ہوئے، اور جو مشکل حالات آتے ہیں، کوئی ایک آپ کو نظیر نہیں ملے گی کہ اتنے مربوط طریقے سے تمام ریاست کے ادارے اور تمام ملک کی اکائیاں جو ہیں
तमाम सियासी इकाइयां, और मैं बार बार याद दिलाता हूं 4 मुख्तलिफ जमातों के वज़राए आला और आजाद कश्मीर के वजीर आजम थे और हैं, रादर उसमें से एक जो है वो टर्म खत्म हो गई गिलगित बल्तिस्तान की, और उनको साथ लेकर चले और फैसले हुए। एक जगह से मुशावरत के बाद फैसले हुआ। हाँ, शाम को 7 से 11 बजे के दरमियान हमें सियासी बयानबाजी बहुत सुनने को मिलती थी, लेकिन जो फैसले थे, सब्सटेंटिव डिसीजन जिनको कहते हैं, वो सब मिलकर किए गए। तो इमरान खान साहब की हुकूमत ने यह साबित किया कि मुल्क के फायदे में जो काम है उसमें वो सबको साथ लेकर चलने के लिए तैयार भी हैं और चल सकते भी हैं और कामयाबी से चल सकते हैं। और तीसरा इसका जो पहलू जो वो उस कॉम्पिटेंस के इशू से डील करता है, मेरे आप जरा ट्वीट उठा के देखिए, फॉरेन रिलेशंस कमेटी के, यूके की पार्लियामेंट के फॉरेन रिलेशंस कमेटी के जो चेयर हैं, उन्होंने भी ये ट्वीट किया है कि पाकिस्तान से सिर्फ यूरोप के जो अमीर मुल्क हैं उनसे नहीं सीखा जा सकता कि बेहतरीन बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं कोविड से मुकाबला करने के लिए, पाकिस्तान से भी सीखा। एक मुल्क उन्होंने नाम लिया, पाकिस्तान से सीखा जा सकता है। और उन्होंने फिर उसके बाद तफसीलात भी मंगवाई थी जो हमने उनको दे दी है। और वो क्यों? क्योंकि डेटा बेस्ड, साइंस बेस्ड, एनालिटिक्स बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती रही। वो डिसीजन मेकिंग ये नहीं थी कि कोई सियासी लीडर जो है वो उसने बयान दाग दिया और बस उसके बाद जो है बगैर सोचे समझे आप फैसले करने शुरू कर दें। सो कॉम्पिटेंस भी दिखाई, बेहतरीन टेक्नोलॉजी के डिप्लॉयमेंट भी दिखाई, पॉलिटिकल कोहेजन के साथ फैसले करने का तरीकेकार भी दिखाया। हर और बुनियादी तौर पे क्या, वो तमाम चीजें जिनकी जरूरत है पाकिस्तान को आगे लेकर चलने के लिए, उन सब के एलिमेंट्स जो हैं वो आपको इमरान खान की लीडरशिप के अंदर, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के अंदर, इसके अंदर नजर आते हैं। आखिर में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इमरान खान 22 साल की जद्दोजहद के बाद, जिसकी कोई पाकिस्तान में, दोबारा मैं वही अल्फाज यूज करूंगा, जिसकी कोई नजीर नहीं मिलती पाकिस्तान के अंदर, ग्रास रूट से स्ट्रगल करके वजीर आजम बने हैं। उन्होंने सबसे बड़ा, जैसे डॉक्टर हफीज शेख साहब ने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सटर्नल क्राइसिस का सामना किया जिसको कोतवाए। उसके बाद भारत का चैलेंज कबूल किया जो बालाकोट के बाद सूरत हाल पैदा हुई। उसके बाद एक डिग्निटी, करेज और ग्रेस की कॉम्बिनेशन के साथ उस क्राइसिस को फेस किया, कोविड के क्राइसिस को फेस किया। तो मेरी जो तमाम ऑपोजिशन के हमारे दोस्त हैं उनके लिए बुरी खबर ये है कि कप्तान जो है ना वो क्रीज पे सेटल हो गए हैं अब, और अब लंबी और प्रोडक्टिव इनिंग्स खेलने के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को इधर से आगे बहुत और बेहतरी के दिन नजर आएंगे इंशाअल्लाह। जी, लास्ट में सानिया निश्तर बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तख़फ़ीफ़ गुर्बत का जो डिवीज़न है उसको जिम्मेदारी दी गई है एहसास प्रोग्राम पर अमल दरामद। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तख़फ़ीफ़ गुर्बत का जो डिवीज़न है उसको ज़िम्मेदारी दी गई है एहसास प्रोग्राम पर अमल दरामद करने की। ये एक बहुत ही अहम ज़िम्मेदारी है क्योंकि पाकिस्तान की 38% आबादी जो है वो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी का शिकार है। एहसास प्रोग्राम पिछले 15 माह पहले इसकी मंजूरी हुई। ये वज़ीर आज़म के रियासत मदीना के विजन के मुताबिक इसको बनाया गया है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा समाजी तहफ़्फ़ुज़ को प्रोग्राम है और अल्लाह ताला की मेहरबानी से इसको बैनुल अक़वामी सतह पे बहुत पज़ीराई मिल रही है। एहसास प्रोग्राम में 140 से ज़्यादा इक़दामात हैं जो कि 34 मिनिस्ट्रियों के दायरा कार में आते हैं, मगर जो तख़फ़ीफ़ गुर्बत की मिनिस्ट्री के दायरा कार में जो आते हैं उसकी परफॉर्मेंस के बारे में मैं कुछ आदाद व शुमार आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहले एहसास किफ़ालत, ये इसके ज़रिए 70 लाख ख़ानदानों को माहाना वजीफ़े और बचत बैंक अकाउंट की सहूलत दी जाती है।
एहसास बिला सूद कर्जा उन लोगों के लिए है जो छोटे कारोबार करना चाहते हैं, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहते हैं। उनके लिए मुल्क के 100 पसमानदा अजला में 29 अरब मालियत के पिछले साल 8,44,000 कर्जे दिए गए, जिसमें से 45% खवातीन को दिए गए। एहसास आमदन इससे एक मुंसलिका प्रोग्राम है जो कि पाकिस्तान के 23 पसमानदा तरीन ज़िलों में इस वक्त जारी है और इसमें 1.5 अरब के छोटे सतह के कारोबारी असासे दिए जाते हैं। इंतहाई गरीब ख़ानदानों को 60% ख़वातीन को दिए जाते हैं और इन असासों में माल मवेशी, दुकान का सामान और इस किस्म के असासे शामिल होते हैं। एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। 4 साल पे मुहित 20 अरब का ये प्रोग्राम 2 लाख तलबा और तालिबात को स्कॉलरशिप के लिए मुख्तस है और पिछले साल हमने 4.9 अरब के 50,500 स्कॉलरशिप्स दिए हैं जो 38% खवातीन को दिए गए हैं। मुल्क की 117 यूनिवर्सिटीज़ में ये स्कॉलरशिप्स गई हैं और अगले साल की कॉल जो है वो अगले चंद दिन में खुलने वाली है। एहसास नशो-नुमा प्रोग्राम जो है पिछले ही हफ्ते 1 साल की तगदो और मेहनत के बाद इसका इजरा वज़ीर आज़म ने किया है। आपको याद होगा कि अपनी पहली तकरीर में वज़ीर आज़म ने एक CT स्कैन उठाया था और इस बात की निशानदेही की थी कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों में आधे बच्चे जो हैं वो स्टंटिंग का शिकार हैं, यानी कि वो खुराक की कमी और दीगर महरूमियों की वजह से ना तो उनका जिस्म बढ़ता है, ना उनकी जो ज़हनी सलाहियत है वो पूरी तरह पनप सकती है। ये मुल्क की तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है और वज़ीर आज़म ने ये वादा किया था कि हम इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम लेके आएंगे। तो पहले मरहले में 1 साल की मेहनत के बाद 9 अजला में 33 सेंटर इसी माह अब पूरी तरह से फ़ाल हो जाएंगे और पहले मरहले में 2,21,000 माँ और बच्चे और ख़ानदान इससे मुस्तफ़ीद होंगे। इसका दायरा कार इंशाअल्लाह बहुत जल्दी बढ़ाया जाएगा। एहसास लंगर का जो प्रोग्राम है ये मज़दूर भाइयों के लिए है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत गवर्नमेंट को ज़ीरो खर्चे के साथ मुल्क भर में लंगर बनाए जा रहे हैं। अभी तक 12 लंगरों का क़याम हो गया है और इंशाअल्लाह इस काम को अगले साल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। पनाहगाह का जो प्रोग्राम है ये वज़ीर आज़म की दिल के बहुत करीब है। ये उन लोगों के लिए है जो खुले आसमान तले मजदूर भाई सड़कों पे, फुटपाथों पे सोते हैं। पिछले 70 साल से पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में उनके लिए 100 से ज़्यादा पनाहगाहें बनाई गई हैं और वज़ीर आज़म की ख़ास हिदायत पर ही इन पनाहगाहों के स्टैंडर्ड्स को बेहतर करने के लिए काम अब तेज़ी से जारी है। पिछले साल पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा यतीम खानों के स्टैंडर्ड्स बेहतर बनाने के लिए कमेटी की तश्कील दी गई। वो कमेटी 1 साल में 14 दफ़ा मिली है और इंशाअल्लाह यतीम खानों के स्टैंडर्ड्स और उससे मुतल्लिका मॉनिटरिंग एंड वैल्यूएशन का निज़ाम बहुत जल्द ही मारिज़ वजूद में आ जाएगा। मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा मजदूर के एहसास के तहत भी पहली दफ़ा कमेटी बनी। उसने भी 1 साल में 13 दफ़ा मीटिंग्स की और उनकी सिफारिशात पर काम बहुत तेज़ी से जारी है। एहसास के तहत 2 प्रोग्रामों का अभी बाकायदा इजरा नहीं हुआ मगर उन पे काम बहुत तेज़ी से पिछले 1 साल पे चला जा रहा है। एक एहसास बच्चों के वजीफे का प्रोग्राम है जिसको पूरे साल हमने डिजिटाइजेशन पे बहुत मेहनत से काम किया है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के तमाम अजला में ये बच्चों के वजीफे का ये प्रोग्राम अगले 15 दिन में इसका बाकायदा इजरा हो जाएगा। इसके अलावा एहसास तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम पाकिस्तान का पहला शॉक ओरिएंटेड सेफ्टी नेट है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास इंसाफ कार्ड नहीं है और जिनके ऊपर अचानक कोई बड़ा तिब्बी खर्चा आ जाए जो अंग्रेजी में जिसे कैटास्ट्रॉफिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये तमाम प्रोग्राम जिनको बैनुल अक़वामी पज़ीराई हासिल है और जो कि बेवा, यतीम, माजूर, मजदूर, बेघर, बेरोजगार, ज़रूरतमंद तालिब इल्म, ज़रूरतमंद माओ, ज़रूरतमंद बच्चों और ज़रूरतमंद बीमारों के लिए है। इनके लिए हंगामी
तौर पे इंतज़ामी ढांचे बनाए गए हैं। 27 मार्च पिछले साल एहसास प्रोग्राम का इजरा हुआ, उसके एक हफ्ते बाद मिनिस्ट्री बनी, मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा बजट उसके लिए मुख्तस किया गया, लाहे अमल के तरीके कंसल्टेंट्स को बड़ी बड़ी तनख्वाहें देने के बगैर बनाए गए, मुशावरती कमेटियां बनाई गईं और सबसे अहम वो एहतसाब और गवर्नेंस की इस्लाहात किए गए जिसकी एक झलक, सिर्फ एक झलक आपने उन 8,20,165 लोगों की शक्ल में देखी है जो कि हुकूमत पाकिस्तान से नाजायज़ तौर पर समाजी तहफ़्फ़ुज़ के वजीफ़े लेते थे। इसके अलावा पिछले एक साल में हमने बहुत से डिजिटल इंटरफेसेस पे भी बहुत तेज़ी से काम किया है। 10 महीने में प्रोक्योरमेंट की है, बायोमेट्रिक पेमेंट सिस्टम की, डेटा एनालिटिक्स का तमाम निज़ाम बनाया है, वो निज़ाम बनाया जिसके ज़रिए SMS के थ्रू रिक्वेस्ट ली जाती हैं जो आपने 81-71 की स्कीम में देखा। और आपने देखा कि इस तमाम मेहनत के नतीजे में ये मुमकिन हो सका कि एहसास इमरजेंसी कैश के ज़रिए मुल्क के आधे ख़ानदानों को हम 12,000 रुपए मुसीबत की घड़ी में कोविड के तनाजुर में पहुंचा सके। ये तमाम मेहनत का ही नतीजा था कि ये काम हम कर सके। और एहसास प्रोग्राम के तमाम प्रोग्राम्स की तरह एहसास इमरजेंसी कैश भी दयानतदारी से हुआ, एक मुनज़्ज़म अंदाज में हुआ, एक शफाफ तरीके से हुआ और वज़ीर आज़म की ख़ास हिदायत पर गैर सियासी बुनियादों पे हुआ, जिसकी झलक आप उस चीज़ में देख सकते हैं कि सिंध का आबादी के तनासुब से तो 22% मुल्क में हिस्सा है, मगर उनको एहसास इमरजेंसी कैश में 31% हिस्सा दिया गया। एहसास का सफ़र अभी जारी है, अभी सिर्फ 15 माह हुए हैं। इंशाअल्लाह अगले साल में इस पर और तेज़ी से काम होगा क्योंकि कोविड के बाद हमें ये मालूम है कि गुर्बत की शरह में ज़्यादती आएगी, इसलिए एहसास पे और तेज़ी से काम होगा, प्रोग्रामों को वसअत दी जाएगी, नए प्रोग्राम्स लाए जाएंगे, जो ऑनगोइंग प्रोग्राम्स हैं उनको ज़्यादा मजबूत बनाया जाएगा। हमारा जो सर्वे है वो इंशाअल्लाह साल तक उसको हम ख़त्म करेंगे और सबसे अहम लोगों की एहसास प्रोग्राम तक रसाई को यकीनी बनाया जाएगा और उसमें आप सब की हमें बहुत मदद और मुआवनत दरकार होगी। तो मैं आज वज़ीर आज़म का ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उनकी रहनुमाई के बग़ैर और उनकी सपोर्ट के बग़ैर ना तो सिर्फ ये प्रोग्राम्स को जल्दी लाना मुश्किल था, मगर वो बहुत सख्त इस्लाहात भी मुश्किल थी जो हमने साथ साथ की हैं। और मैं अपने सब काबीना के सीनियर साथियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि एहसास में तमाम हुकूमत की नेक नियति शामिल थी। आपका बहुत तवज्जो का बहुत शुक्रिया। चाहते हैं कि आपने हमारी इस प्रेजेंटेशन को कवर किया। साथ ही साथ में मैं बता दूं कि हमारा दूसरा सेशन कल होगा और उसमें आपके पूरे सवालात के जवाबात भी दिए जाएंगे। और इस दौरान में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हमने इसको एक किताबी शक्ल भी दी है जिसमें कि सारी हमारी हुकूमत की जो भी 2 साल परफॉर्मेंस है वो इससे रिफ्लेक्ट करती है। थैंक यू। जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए,
जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाता है। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। अस्सलामुअलैकुम, JNN के साथ मैं हूं आकाशा यासीन। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आज की सबसे अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी वजारत दिफा की जानिब से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब की अस्करी क़यादत के दरमियान मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान फौजी ताल्लुकात और मुश्तरका मशकों से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सरकारी दौरा। आर्मी चीफ ने कमांडर ज्वाइंट फोर्सेस और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद से मुलाकात की। दोनों मुल्कों की अस्करी क़यादत के दरमियान मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान फौजी ताल्लुकात और मुश्तरका मशकों से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर आर्मी चीफ के साथ DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। बाद अज़ां आर्मी चीफ ने सऊदी नायब वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलेमान से भी मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। दिफा सिक्योरिटी के शोबों में ताउन और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। वफाकी काबीना का इजलास 10 निकाती एजेंडे पर आज वज़ीर आज़म की सदारत में होगा। इजलास में अमारात, इसराइल माहदे और इससे पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना इजलास में मुल्क की सियासी, मौशी और सलामती के उमूर पर गौर होगा और अमारात, इसराइल माहदे से पैदा होने वाली सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना को हुकूमत के 2 साला कारकर्दगी पर मजमूई ब्रीफिंग दी जाएगी। NIFT के मुलाजमीन पर लाजमी सर्विस एक्ट के निफाज में तोसी की मंजूरी भी काबीना एजेंडा में शामिल है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग कारपोरेशन और सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड के मुलाजमीन पर लाजमी सर्विस एक्ट के निफाज में तोसी की मंजूरी भी मुतवक्के है। काबीना को बिजली की तकसीम कार कंपनियों के बोर्ड्स की तश्कील नौ में पेशरफ्त से आगाह किया जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद तोशा खाना रेफरेंस की समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 9 सितंबर को तलब कर लिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशा खाना रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी को जाती हैसियत में तलब किया था, जिसके लिए वो इस्लामाबाद पहुंचे। समाअत के आगाज पर अदालती अमले ने आसिफ अली जरदारी की तलबी के लिए उनके वकील फारूक H नाइक को हदायत दी, जिस पर फारूक नाइक ने साबिक सदर को फोन करके अदालत में पेश होने को कहा। समाअत के दौरान वकील सफाई और नैब की प्रोसिक्यूशन टीम के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक H नाइक ने कहा कि साबिक सदर बीमार हैं, अदालत भरी हुई है, अगर इनको कोरोना हो गया तो कौन जिम्मेदार है। बाद अज़ां अदालत ने आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म के लिए 9 सितंबर की तारीख मुकर्रर करते हुए उन्हें आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म दिया, जबकि अदालत ने तमाम मुल्जिमान को रेफरेंस की नकल फराहम करने का भी हुक्म दिया।
तोशा खाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई मौखर कर दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के वकील बैरिस्टर जहांगीर जदून ने अदालत में दरख्वास्त दायर करते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहतसाब अदालत की कार्रवाई को चैलेंज किया हुआ है, जिसके फैसले का इंतजार किया जाए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में तोशा खाना रेफरेंस की समाअत हुई तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ तोशा खाना रेफरेंस में अदालती कार्रवाई का हिस्सा बन गए और एहतसाब अदालत में आज की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई 25 अगस्त तक रोककर समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अब नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने या ट्रायल में शामिल करके फर्द जुर्म आयद करने का फैसला 25 अगस्त को होगा। इस्लामाबाद से अहम खबर शामिल करते हुए आपको बताते चले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन मजहब के मुल्जिमान के खिलाफ केसेस जल्द निपटाने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर समाअत की। समाअत की तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान। जी अब्दुर्रहमान, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज तौहीन मजहब के जो मुल्जिमान हैं उनके खिलाफ जितने भी पेंडिंग केसेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनको जल्द निपटाने के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर आज समाअत हुई है। जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से समाअत की गई है, जिसमें आइंदा समाअत पर अदालत ने डायरेक्टर साइबर क्राइम और केस के तफ्तीशी ऑफिसर को ज़ाती हैसियत में बुलवाया है अदालत ने और उनको हदायत की कि जवाब जमा करवाएं। और उसके अलावा अदालत ने वजारत खारजा और सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को भी नोटिस जारी करते हुए तलब कर लिया है। आज दौरान समाअत जस्टिस आमिर फारूक ने ये रिमार्क इस्तफसार किया कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी केसेस चलते हैं उस पर कैसे फैसला दिया जा सकता है। पूरे पाकिस्तान के केसेस में कोई फैसला नहीं दे सकता मजमूई तौर पर। इसके अलावा FIA ने भी आज तौहीन मजहब के मुल्जिमान के जो है रिपोर्ट अदालत में पेश की है, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया है कि आज रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं कि आप लोग खुद ही ये केसेस बर्बाद कर रहे हैं। क्या मैं DG FIA को यहाँ पर बुलवा लूँ? गुस्ताखे रसूल के मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से ज़मानतें मिल जाती हैं और जिनको अदालतों से ज़मानतें मिलती हैं वो मुल्क छोड़कर निकल जाते हैं। अदालत ने ये कहा है कि जो मुल्जिमान रिलीज हुए हैं उनका पता करें कि मुल्क में हैं या नहीं हैं। इस पर मजीद केस की कार्रवाई 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई है और डेट एंड ऑफिसर। जी बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, समाअत से मुतल्लिक आगाह करने के लिए। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मुहर्रम उल हराम में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। वफाकी वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी की ज़ेर सदारत उलमा कराम और दीगर महकमों का मशावरती इजलास में फैसला। मुहर्रम उल हराम के तनाजुर में वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी की ज़ेर सदारत उलमा कराम और दीगर महकमों का मशावरती इजलास मुनक्किद हुआ। मशावरती इजलास में वजारत दाखिला, वजारत सेहत, ज़िला इंतज़ामिया, NCOC समेत मुख्तलिफ मसालिक के नुमाइंदा उलमा कराम ने शिरकत की और मुहर्रम उल हराम के इज्तिमात में एहतियाती तदाबीर और मसलकी रवादारी के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका इलामिया पर इत्तफ़ाक़ ज़ाहिर किया। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने मुश्तरका इलामिया पढ़कर सुनाया, जिसके मुताबिक तमाम मकातिब फ़िक्र अपने दरमियान मोहब्बत, रवादारी और अफ़हाम व तफ़हीम के फ़िज़ा कायम करके नेकी खलूस से दिल को कोशिश करेंगे। मसले की तनाज़ात को बाहमशावरत, अफ़हाम व तफ़हीम और संजीदा मुकालमे के उसूलों की रोशनी में तय करेंगे। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मुहर्रम उल हराम में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। पीर नूरुल हक कादरी ने मज़ीद कहा कि किसी सोच और फिक्र को अपनाना गलत नहीं बल्कि दूसरों पर मुसल्लत करना गलत है। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते चले, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता किया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान को भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने की यकीन दहानी करवाई है। टेलीफोनिक राब्ते में मजीद क्या गुफ्तगू हुई और उसकी पाकिस्तानी सियासत पर क्या असरात पड़ सकते हैं, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शेराज अहमद शेराजी। जी शेराज, क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल आकाशा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। मैं आपको बताना चलूँ
اس سے پہلے آل پارٹیز کانفرنس کی باتیں ہوئی تھی، جس کے بعد اپوزیشن کی دو بڑی جماعتوں نے حکومت کا ساتھ دیا تھا FATF بل میں، جس کے بعد جو ہے مولانا فضل الرحمان ناراض ہوئے تھے اپوزیشن کی دو بڑی جماعتوں سے. تو کل جو ہے خبر سامنے آئی تھی کہ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان جو ہے رابطہ ہوگا، اور وہی ہوا کہ سابق وزیر نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا، اور رابطے کے دوران نواز شریف کا کہنا تھا کہ میں چونکہ بیمار تھا تو اس لیے ہمارے درمیان کمیونیکیشن نہیں ہوئی، ہمارے درمیان بات چیت جو ہے وہ نہیں ہوئی. دونوں نے جو ہے رہبر کمیٹی کے حوالے سے بات چیت کی، اور یہ بھی کہا کہ جلد رہبر کمیٹی کا جو ہے وہ اجلاس بلایا جائے گا اور اس میں آئندہ کی حکمت عملی جو ہے اس پر بات چیت کی جائے گی. میں آپ کو بتا چلوں کہ اس موقع پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جو نون لیگ ہے وہ مجھے بہت قریب ہے، اور انہوں نے نواز شریف کو مشورہ دیا کہ آپ بھی جو نیب کی پیشہ ہے وہ نہ بھگتے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی پیشی پر کوئی بھی پارٹی رہنما جو ہے وہ نیب پیش نہ ہو، جبکہ پیشی سے انکار کیا جائے اور جیل بھرو تحریک جو ہے وہ شروع کیا جائے. آکاشا، میں آپ کو بتا چلوں کہ آل پارٹیز کانفرنس میں ایک نیا موڑ سامنے آیا ہے، اور اب چونکہ سابق صدر نے گفتگو کی ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، تو جو تحفظات تھے مولانا فضل الرحمان کے یقیناً وہ دور ہوئے ہوں گے، اور اب وہ جو ہے دوبارہ لوٹ آئیں گے، اور حکومت کے خلاف جو تحریک ہے وہ ایک نئے سرے سے جو ہے ان کا آغاز ہو جائے گا. تو اس کا پاکستانی سیاست پر جو ہے گہرا اثر پڑ سکتا ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت کے جو دیگر ارکان تھے انہوں نے شدید تنقید کی تھی اپوزیشن کی ان دو بڑی جماعتوں پر، اور آج جب اس پر گفتگو ہوئی ہے تو اس کے بعد اس تحریک نے ایک نیا موڑ جو ہے وہ اختیار کیا ہے، اور اب جلد جو ہے نیا لائحہ عمل تیار ہوگا اور حکومت کے خلاف تحریک جو ہے ان کا باقاعدہ آغاز جو ہے کیا جائے گا. جی آکاش. بہت شکریہ شیراز احمد شیرازی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے نیب عدالت کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم پر 18ویں آئینی ترمیم اور NFC کی وجہ سے دباؤ ہے، لیکن ہم ان اہم نکات پر اپنا موقف نہیں بدلیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا نیب عدالت میں صدر پاکستان آصف علی زرداری کی پیشی کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ صدر زرداری کے وکلا فاروق نائک اور سردار لطیف کھوسہ کو روکا گیا، سپریم کورٹ کے دیگر وکلا کو بھی روکا گیا، عدالت کے باہر اسلام آباد کی ساری پولیس کو تعینات کر دیا گیا. انہوں نے کہا کہ آخر عوام اور وکیلوں سے کیا چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. 17 اگست تمام جیلوں کو یاد ہے، آج 1 عامر کا آخری دن ہے، یہ ایک ہائیبریڈ وزیر اعظم کا بھی خاتمے کا دن ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ PPP نے ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق اور مشرف جیسے ڈکٹیٹروں کا مقابلہ کیا ہے اور آج بھی کٹ پتلی حکومت کا مقابلہ کر رہے ہیں. ہم پر 18ویں آئینی ترمیم اور NFC کی وجہ سے دباؤ ہے، لیکن ہم ان اہم نکات پر اپنا موقف نہیں بدلیں گے. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم معاشی حقوق اور آئین پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، چاہے حکومت ان کے خاندان کے تمام افراد کو گرفتار کر لے. انہوں نے کہا کہ حیرت کی بات ہے کہ نیب کا ایک جج ویڈیو لنک پر پیشی کی اجازت دے دیتا ہے جبکہ دوسرا زبردستی عدالت میں پیش ہونے کے لیے کہتا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ کسی کے دماغ میں کوئی فطور ہے تو نکال دے، آئینی اختیارات کسی سے شیئر نہیں کروں گا. کمیٹی بننے کی بات ہوئی ہے، کوئی معاہدہ نہیں ہوا. کمیٹی بنے گی تو سندھ اور وفاقی حکومت کی متفقہ کمیٹی ہوگی. کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے سندھ اور وفاق میں ہونے والے اتفاق پر وزیر اعلیٰ سندھ کا موقف سامنے آ گیا. کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ سندھ کی تقسیم کی بات کرنے والوں کو پاکستان کا دشمن سمجھتا ہوں. آئین میں دیے گئے اختیارات کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے. کسی کے دماغ میں یہ فطور ہے تو نکال دے، ایسی باتوں سے سندھ کے لوگوں کو دکھ پہنچتا ہے. وفاقی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کیا ہمیں پتہ نہیں کہ بین الاقوامی سطح پر آپ کیا غلطیاں کر رہے ہیں. خارجہ سطح پر غلطیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے سندھ سے متعلق باتیں کی گئیں. مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ کراچی میں برسات پہلی بار نہیں ہوئی. بارشوں سے متعلق پرانی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی. نالوں کی صفائی کا کام بہت پیچیدہ ہے. کوڑا کرکٹ ٹھکانے لگانا اہم مسئلہ ہے. مسائل کی اہم وجہ نالوں کے اطراف تجاوزات ہیں. مسائل کے حل کے لیے سب کے تعاون کا خیر مقدم کرتے ہیں. NDM میں کے چیئرمین جنرل افضل صاحب ادھر آئے، اسی کمرے میں بیٹھے، ہم نے بات چیت کی. 38 ٹوٹل بڑے نالے ہیں
जो पहली बार सिंध हुकूमत खुद साफ़ करेगी। इससे पहले ये नाले पिछले 4 साल की तो मुझे पता है KMC साफ करती है, KMC को एडिशनल ग्रांट सिंध हुकूमत देती रही है और मेयर साहब ने कहा है कि जी हम ये सफाई करते रहे। ये 38 नाले क्योंकि कि हम एक बड़ा प्रोग्राम देख रहे हैं, एक वर्ल्ड बैंक का बड़ा प्रोग्राम है जिसके तहत न सिर्फ इन नालों की सफाई होनी है लेकिन वो इंतज़ाम करना है कि दोबारा इन नालों में गंदगी ना जाए। तहरीक इंसाफ कराची के रहनुमा खुरम शेर जमान का कहना है कि कराची की तरक्की और बेहतरी के लिए हमने पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाकर कड़वा घूंट पिया। जो कराची शहर पूरे मुल्क को चलाता है, इसके लिए सूबाई हुकूमत ने कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर और रुकने सिंध असम्बली खुरम शेर जमान ने कहा कि कराची की तरक्की और बेहतरी के लिए हमने पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाकर कड़वा घूंट पिया है ताकि कराची की आवाम को कुछ रिलीफ मिल जाए। 12 साल से सूबा सिंध और खुसूसन कराची के साथ पीपल्स पार्टी सौतीली माँ जैसा सलूक कर रही है। हमारी सोच है कि जमहूरी तरीके से आवाम के मसाइल हल हों। अगर आज कराची शहर का सर्वे करवाएं तो शहर के लोग फौरी तौर पर इंतजामी तब्दीली के ख्वाह हैं। खुरम शेर जमान ने इंसाफ हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, इस मौका पर उनके हमरा अरकान सिंध असम्बली डॉक्टर इमरान अली शाह, अरसलान ताज, डॉक्टर सीमा ज़िया, PTI रहनुमा फराज लाखानी, इमरान सदीकी और दीगर मौजूद थे। सिंध हुकूमत की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है कि शहर में ट्रांसपोर्ट के निजाम को बेहतर करे। इस वक्त कराची शहर को 6 से 7 हजार बसों की जरूरत है। हम सिर्फ कराची ही नहीं पूरे सिंध के हालात ठीक करेंगे। जिस तरह दीगर सूबे वजीर आजम इमरान खान के हैं, इसी तरह सूबा सिंध भी इमरान खान का है। वफाकी दारुल हुकूमत के सबसे बड़े अस्पताल फिम्स में घोस्ट मुलाजमीन का इंकशाफ हुआ है। नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स की जानिब से वजारत सेहत को खत लिख दिया गया। खत में करप्शन, घोस्ट मुलाजमीन की भर्तियों, गैर कानूनी तैनातियों जैसे इल्जामात की भरमार है। नेफ्रोलॉजी वार्ड में महज 8 डॉक्टर्स पर मुकम्मल इन्हिसार किया जा रहा है। बाकी डॉक्टर्स इंतजामिया की मिली भगत से लंबी छुट्टियों पर रवाना हो गए हैं। खत में लिखा गया कि नेफ्रोलॉजी वार्ड में स्टाफ की इंतहाई किल्लत होने के बाद शदीद मुश्किलात का सामना है। नेफ्रोलॉजी कोटा में भर्ती किए जाने के बावजूद मुतादिद डॉक्टर्स इंतजामी अशेरबाग से जनरल वार्ड में ही ड्यूटी करते हैं। मुतादिद डॉक्टर्स की जानिब से ड्यूटी में मनमानियों के बाद मौजूदा स्टाफ ज़हनी इज़्तिराब का शिकार है। मुतासर डॉक्टर्स की जानिब से इससे पहले भी कई बार मामले के खिलाफ आवाज उठाई गई है। रावलपिंडी के थाना वारिस खान की हुदूद में लड़की को बेलिबास करने वाले मुल्जिमान का ग्रामेटिक और फॉरेंसिक टेस्ट करवाने का फैसला। मुल्जिमान को पंजाब फॉरेंसिक लेबोरेटरी रवाना कर दिया गया। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से नुमाइंदा JNN उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में। थाना वारिस खान की हुदूद में लड़की को बहराना करने और मुबैना ज्यादती करने वाले मुल्जिमान को पंजाब फॉरेंसिक लेबोरेटरी में ग्रामेटिक फॉरेंसिक टेस्ट के लिए लाहौर रवाना कर दिया गया। मुल्जिमान को 11 अगस्त को अदालत ने अदम पैरवी पर गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था, जिसके बाद थाना वारिस खान पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के खिलाफ 15 जुलाई को SHO थाना वारिस खान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था, जबकि मुतासरा लड़की ने 22 जुलाई को पुलिस को अपना इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करवाया था। मुल्जिमान ने 7 अगस्त को अबूरी जमानत हासिल की थी। मुल्जिमान आमिर कुरैशी, मोहसिन और अरसलान को 11 अगस्त को अदालत ने गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था, जिसके बाद मुल्जिमान को अहाताई अदालत से गिरफ्तार किया गया था। लड़की को बेलिबास करने पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से वाक़े का नोटिस लिया गया था, जबकि मुल्जिमान को कल 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद दोबारा अदालत पेश किया जाएगा। कैमरामैन शराज अहमद के साथ मोहम्मद उस्मान मुगल, JNN न्यूज़, रावलपिंडी। मौसम की सूरत हाल से आगाह करते चले। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मौसम की क्या ही कहने। हल्की फुल्की रिमझिम से मौसम खुशगवार हो गया। शदीद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शराज अहमद शराजी से। जी शराज, क्या तफसीलात है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल आकाश, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मौसम के तो क्या ही कहने। कभी खाली गठाई जा जाती है तो कभी सूरज अपना तेवर दिखा देता है। और आज सुबह से हल्की फुल्की रिमझिम से शहर इक़्तिदार का मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। गर्मी का और शदीद हब्स का जोर जो है वो टूट गया है और इस्लामाबाद के बाशियों के चेहरे जो है वो खुशी से खिल उठे हैं। अगर बात की जाए मौसम के हवाले से तो अभी भी हल्की फुल्की रिमझिम जो है वो जारी है और हवा में नमी का तनासुर
तनासब जो है वो तकरीबन आज 80% रहेगा। इसके साथ साथ वफाकी दारुल-हुकूमत का जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 35 डिग्री सेंटीग्रेड आज रहेगा। मैं आपको बताना चलूँ कि आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, अंदरूनी सिंध, आज़ाद कश्मीर समेत इस्लामाबाद में हल्की फुल्की और गरज चमक के साथ जो है वो बारिश का इम्कान है। और इस्लामाबाद में बारिश इस तरह ही हल्की फुल्की बारिश जो है वो जारी रहा तो यकीनन आज वफाकी दारुल-हुकूमत का मौसम जो है वो खुशगवार रहेगा। जी आकाशा। बहुत शुक्रिया शेराज अहमद शेराजी तफसीलात से आगाह करने के लिए। मकबूजा कश्मीर में मुसल्लह झड़प के दौरान भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 एहलकार हलाक हो गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में जिला बारामूला के इलाके करेरी में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और कठपुतली पुलिस के एहलकार मुश्तरका गश्त कर रहे थे कि उन पर नामालूम सम से फायरिंग की गई। फायरिंग के नतीजे में 3 एहलकार मौका पर ही हलाक हो गए। हमले में हलाक होने वाले एहलकारों में से 2 का ताल्लुक सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स से है, जबकि एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर था जिसकी शिनाख्त मुजफ्फर अहमद के नाम से हुई है। वाक़े के बाद काबिज भारतीय फौज ने इलाके में सर्च ऑपरेशन के नाम पर मुहासरा कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से दायर करदा इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद कर दी है। अदालत ने वफाकी हुकूमत को चीनी कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकात जारी रखने का हुक्म दे दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट के खिलाफ दायर करदा इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला जारी कर दिया गया है। 24 जुलाई को ये फैसला महफूज किया गया था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस लुबना सलीम परवेज़ पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने फैसला महफूज कर दिया था और आज ये फैसला सुना दिया गया है, जिस पर अदालत ने आज इंट्रा कोर्ट अपील को मुस्तरद कर दिया है और अदालत ने चीनी कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक जो कार्रवाई है उसको जारी रखने का हुक्म दिया है और इसकी जो लीगल वैल्यू है चीनी इंक्वायरी कमीशन की उसको बरकरार रखने का फैसला सुनाया है अदालत ने। और अदालत ने हुकूमत को हुक्म दिया है कि इसके मुताबिक जो कार्रवाई है उसको जारी रखा जाए। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि ये जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की जानिब से फैसला सुनाया गया था, जिसमें पहले भी जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की जानिब से रिपोर्ट को मुस्तरद किया गया था, जिसको डिवीज़न बेंच पे चैलेंज किया गया था और 24 जुलाई को महफूज शुदा फैसला आज सुना दिया गया। जी बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। आरिफवाला से खबर आपको देते चलें। आरिफवाला होता रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान मौका पर जान बहक हो गए हैं। आरिफवाला होता रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान हैदर और उसका दोस्त शहरयार मौका पर जान बहक हो गए हैं, जबकि ट्रक का ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया है। पुलिस ने ट्रक को कब्जा में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। आरिफवाला में वजीर आजम पाकिस्तान के क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत मुल्क को सरसब्ज शादाब बनाने के लिए डीएसपी पेट्रोलिंग पुलिस ने गंज शक्कर चेक पोस्ट पर पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं आरिफवाला से मोहम्मद आसिम। आरिफवाला में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत मुल्क और पाकिस्तान को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए डीएसपी पेट्रोलिंग पुलिस मलक मोहम्मद रफीक ने गन शकर चेक पोस्ट पर पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। डीएसपी पेट्रोलिंग मलक मोहम्मद रफीक और अहलकारों ने अपने अपने हाथों से पौधा लगाकर मुल्क को सरसब्ज व शादाब बनाने का अज़म भी किया। डीएसपी पेट्रोलिंग पुलिस मलक रफीक का कहना था कि पौधा लगाना सदका जारिया है, हर किसी को अपने अपने हिस्से का पौधा लगाना चाहिए। यही पौधे कल को दरख्त बनकर हमारी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल में फायदेमंद साबित होंगे। जिला भर की तमाम पेट्रोलिंग चेक पोस्टों पर पौधे लगाए जा रहे हैं। शजरकारी मुहिम में पेट्रोलिंग अफसर राणा इजाज अकरम समेत दीगर अहलकार भी मौजूद थे। सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी की पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफीर से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात इस्तवार करने के हवाले से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। देखते हैं ये रिपोर्ट।
आर्मी चीफ की सऊदी नायब वजीर दिफा से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी नायब वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात हुई, जिसमें खत्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ की सऊदी नायब वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी नायब वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात में दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। इससे कबल आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने सऊदी जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर रियाज का दौरा किया। आर्मी चीफ की सऊदी चीफ ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल फयाज बिन हामिद और कमांडर ज्वाइंट फोर्स लेफ्टिनेंट जनरल स्टाफ फहद बिन तुर्की सऊद से मुलाकातों में दोनों ममालिक के दरमियान फौजी तरबियत और दफाई ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर गुफ्तगू की गई। लिया मुहर्रमुल हराम, लिया पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया है। मुहर्रमुल हराम के सिलसिला में जिला भर में 1778 मजालिस जबकि 133 जुलूस बरामद होंगे। लिया दाखिल खारजी रास्तों पर पैक्ट्स कायम किए जाएंगे। हसास मकामात पर निगरानी के लिए CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं, जबकि जिला भर में 1200 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकारान की ड्यूटी होगी। कैटेगरी के 150, B कैटेगरी के 282, C कैटेगरी के 1346 प्रोग्राम मुनक्किद होंगे। आजादवारी जुलूस के 133 प्रोग्राम, जिनमें A कैटेगरी के 28, B कैटेगरी के 31, C कैटेगरी के 74 प्रोग्राम शामिल हैं। पुलिस कमांड एंड कंट्रोल वैन के जरिए मजालिस की मॉनिटरिंग की जाएगी। 4th शेड्यूल में शामिल अफराद पर कड़ी नजर रखी जाएगी और काबिल एतराज वॉल चेकिंग, बैनर्स, पोस्टर्स, असलाह की नुमाइश और लाउड स्पीकर पर पाबंदी को यकीनी बनाया जाएगा। इमरजेंसी की सूरत में पुलिस हेल्पलाइन 15 और दफ्तर में कायम कंट्रोल रूम नंबर पर इत्तला दी जा सकती है। नेशनल लॉकर्स कंट्रोल सेंटर ने कहा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से टिड्डी दल का खात्मा कर दिया गया है, जबकि बलूचिस्तान के जिला लसबेला और सिंध के जिला थरपारकर में टिड्डी दल अभी भी मौजूद है। NLCC ने बताया कि टिड्डी दल के खात्मे के लिए सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,32,800 हेक्टेयर से जायद रकबा का सर्वे मुकम्मल किया गया है। 24 घंटों में सिंध के जिला थरपारकर और बलूचिस्तान के जिला लसबेला के मुतासरा इलाकों में 1,157 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे के जरिए टिड्डी दल का खात्मा किया गया। गुज़िश्ता 6 माह में 11,13,076 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे करके टिड्डी दल का खात्मा किया गया। थाना गुजर खान के इलाके वार्ड नंबर 7 में नाखल्फ बेटे और उसकी अहलिया का 65 साला वालिदा पर तशद्दुद के वाक़े पर CPO रावलपिंडी ने नोटिस लेकर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुतासरा खातून की दरखास्त पर बेटे और बहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बेटे नबील अबरार और बहू सना अयूब ने मकान के तनाजे पर बुजुर्ग मां को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके दोनों मियां बीवी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को ठोस शवाहिद के साथ अदालत में पेश किया जाएगा। और शरीफ 10 साला यतीम बच्ची से 40 साला शख्स की जबरदस्ती शादी की तकरीब को पुलिस ने नाकाम बना दिया। पुलिस ने दुल्हा को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। और शरीफ के नवाह इलाका रामकली में 10 साला यतीम बच्ची से उसकी 40 साला कजन मोहम्मद तारिक की शादी तकरीब जारी थी, जब पुलिस ने इत्तला मिलने पर कार्रवाई करते हुए शादी की कोशिश नाकाम बनाकर दुल्हा को हिरासत में ले लिया और कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। DPO बहावलपुर ने पुलिस को जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हदायत की है। जराये के मुताबिक 10 साला आमना का वालिद फौत हो चुका है और उसका जबरदस्ती रिश्ता किया गया। JNN न्यूज को मौसूल होने वाली वीडियो में बच्ची की आंखों में आंसू देखे जा सकते हैं। ओकाड़ा के इलाका अड्डा गैमर में शौहर ने टोके के वार से बीवी और बेटे पर हमला कर दिया। हमले के नतीजे में बीवी जान बहाक जबकि बेटा शदीद जख्मी हो गया है। ओकाड़ा के इलाका अड्डा गैमर के मोहल्ला फरीदनगर में शौहर ने टोके के वार से बीवी और बेटे पर हमला कर दिया,
जिसकी वजह से बीवी मौका पर ही जख्मों की ताब ना लाते हुए जान बहाक हो गई, जबकि उसका 25 साला बेटा शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 ने मौका पर पहुंचकर 50 साला नसरीन बीबी की नाश और जख्मी असगर को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक झगड़े की वजह घरेलू अनाज बताई जा रही है। कसूर थाना सदर की हुदूद में फैक्ट्री वर्कर को दर्जनों अफराद ने वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। कोट मुराद खान के रहायशी फरख को फैक्ट्री बस से उतारकर तशद्दुद किया गया। नाज़रीन, अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। कसूर थाना सदर की हुदूद में फैक्ट्री वर्कर को दर्जनों अफराद ने वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। कोट मुराद खान के रहायशी फरख को फैक्ट्री बस से उतारकर तशद्दुद किया गया। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। कसूर थाना सदर की हुदूद में फैक्ट्री वर्कर को दर्जनों अफराद ने वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। कोट मुराद खान के रहायशी फरूख को फैक्ट्री बस से उतारकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे आसिफ जावेद से। जी आसिफ, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी, मैं आपको बताता चलूं कि ये वाकया कसूर सदर थाना बाईपास की हदूद में पेश आया, जहां नजीर नामी ड्राइवर ने एक मेहनत कश फैक्ट्री वर्कर्स को बस से उतारकर सरेआम शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। और जैसा कि फुटेज पर देखा जा सकता है कि नजीर और इसके साथियों को डंडों और लाठियों से इस नौजवान पर तशद्दुद करते दिखाया जा सकता है। इस नौजवान का कहना है कि जब इस सिलसिले में पुलिस अहकाम से राब्ता किया तो पुलिस अहकाम ने किसी भी किस्म का ताउन ना किया। जी, बहुत शुक्रिया आसिफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। राजनपुर की तहसील जामपुर में दुकानदारों ने चोरी की बढ़ती हुई वारदातों और मुजरिमान का सुराग लगाने में नाकामी के मामले पर एहतजाज किया है। मकामी ताजरों और शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और आला पुलिस अफसरान से सूरत हाल का फिलफौर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। राजनपुर की तहसील जामपुर में आए रोज होने वाली चोरी डकैती की वारदातों से सताए ताजरों ने एहतजाज करते हुए JNN न्यूज को बताया कि जुराइम पेशा अफराद ने उनका भारी नुकसान करना शुरू कर रखा है। गुज़िश्ता रात चोरों ने राजनपुर रोड पर आयशा मस्जिद मार्केट में वाक़े 2 दुकानों के गेट तोड़कर हजारों रुपए मालियत का कीमती सामान चोरी कर लिया। मार्केट के दुकानदारों ने JNN न्यूज को बताया कि पुलिस का गश्त ना होने के बराबर है, जिससे चोर बिला खौफ व खतर शहरियों ताजरों का नुकसान कर रहे हैं। राजनपुर रोड पर चोरी की वारदातें मामूल बन चुकी हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि पुलिस की नाकिस कारकर्दगी का नोटिस लें और मुलजिमान को गिरफ्तार करें ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें। रहीम यार खान महकमा वाइल्ड लाइफ अफसरान की सरपरस्ती में गैर कानूनी शिकार का इंकशाफ किया गया है। गैर कानूनी शिकार में नायाब नस्ल की हिरणों की नस्लकुशी का सिलसिला जारी है। 2 रोज कबल वाइल्ड लाइफ की मुबैना सरपरस्ती में चोलिस्तान इलाके में गैर कानूनी तौर पर हिरणों और नायाब नस्ल के परिंदों के शिकार का इंकशाफ किया गया है। आए रोज चोलिस्तान इलाके में हिरणों और नायाब परिंदों के शिकार ने चोलिस्तान इलाके को वैरान कर दिया है। हिरणों की नस्लकुशी इस कदर बढ़ चुकी है कि अब चोलिस्तान में हिरन और बहुत से नायाब किस्म के परिंदे नापैद हो चुके हैं। इस हवाले से वार्ड ऑफिसर का कहना है कि हम पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं। मंशियात फरोशी के झूठे मुकदमात दर्ज करने पर इलाका मकीनों ने थाना ठट्ठा सादकाबाद पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया है। पंजाब पुलिस और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। मुजाहिरीन ने एडिशनल IG जनूबी पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। चंद रोज कबल चक नंबर 137-10R के रहायशियों ने मंशियात फरोशी के खिलाफ पुलिस को शिकायत की तो SHO ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय चक नंबर 137 के रहायशी सलीम के घर छापा मारा। चादर चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल करते हुए अहले खाना पर तशद्दुद किया और मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया, जिस पर इलाका मकीन मुश्ताइल हो गए और पुलिस के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि मोहम्मद सलीम पुलिस का मुखबिर है और मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां भी करवा चुका है, जिसकी वजह से SHO ने उसे गिरफ्तार करके उल्टा इसी पर मंशियात फरोशी का मुकदमा दर्ज कर दिया। उन्होंने एडिशनल IG जनूबी पंजाब से वाक़े की नोटिस लेने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला शकोपुरा के पैनल से जश्न आज़ादी के हवाले से फुटबॉल के टूर्नामेंट का इनेकाद किया,
जिसमें इलाका भर के तमाम छोटी बड़ी टीमों ने शिरकत की है। जश्न आजादी के सिलसिला में सफ्ताराबाद के किनाल पार्क में फुटबॉल मैचेस के टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका भर के तमाम छोटी बड़ी टीमों ने शिरकत की। तकरीब में सफ्ताराबाद और इसके गिरदोनवास से कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत करके ग्राउंड को 4 चांद लगा दिए। इस सारे प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेखुपुरा के जनरल सेक्रेटरी सरदार सरफराज थे। मेहमानों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर नौजवानों की तवज्जो खेलों की तरफ से मायल की जाए तो हमारे मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और यही नौजवान आगे जाके मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। मैच के इख्तिताम पर जीतने वाली टीमों में इनामात भी तकसीम किए गए। शेखुपुरा डीपीओ के खुसूसी हदायत पर इंचार्ज से आए और उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए खतरनाक इश्तिहारी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान अगवा समेत दीगर वारदातें करते रहे हैं। खतरनाक इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए तश्कील दी गई टीम ने स्पेशल टास्क पर कत्ल और अगवा बराए तावान के मुकदमात में मुलव्विस खतरनाक इश्तिहारी मुजरिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर करदा लाखों रुपए सर की कीमत वाले 2 खतरनाक मुजरिमान इश्तिहारी को गिरफ्तार किया गया। आईटी सेक्शन ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अपने तमाम तर वसाइल को बरोकार लाते हुए 68 साल से रुपोश हुए कत्ल और अगवा बराए तावान में मुलव्विस सैफुल्लाह वल्द मोहम्मद हुसैन कौम भट्टी, जिसके सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी, और सरफराज अहमद वल्द खान मोहम्मद कौम भट्टी, जिसके सर की कीमत 2 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी, को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रेमी जोड़े ने शादी न होने की वजह से गंदम में रखने वाली गोलियां निगल ली। गुज़िश्ता रोज शेखुपुरा जिना पार्क जहाज चौक में नौजवान लड़का और लड़की बेहोशी की हालत में मिले थे। शेखुपुरा जिना पार्क जहाज चौक में नौजवान लड़का और लड़की बेहोशी की हालत में मिले। रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा ने बेहोश जोड़े को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शेखुपुरा मुंतकिल कर दिया था, मगर दोनों जान बहक हो गए। जान बहक होने वालों में 22 साला जावेद इकबाल और 20 साला इशा शामिल हैं। फैमिली जराये के मुताबिक दोनों पसंद की शादी करना चाहते थे, मगर जात बरादरी मुख्तलिफ होने की वजह से दोनों की वर्सा रजामंद नहीं हो रहे थे, जिससे दिलबर्दाश्ता होकर दोनों ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। सरगोदा के ब्लॉक 1 प्लाजा में लगने वाली आग पर 11 घंटे गुजरने के बावजूद भी काबू नहीं पाया जा सका। आग ने शूज शॉप और शॉपिंग बैग के गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया है। आग ने प्लाजा में दर्जनों दुकानों और अपनी लपेट में ले रखा है। आग लगने के बाद करोड़ों रुपए मालियत का सामान जलकर राख हो गया। आग बुझाने के लिए एयरफोर्स के फायर टेंडर भी मौजूद हैं। इंतजामिया की नाअहली और गफलत के बायस मुतासिर ताजर एहतजाज पर मजबूर हो गए। ताजरों का कहना है कि अपनी आग के बायस जलती और गिरती दुकानें देखकर खुदकुशी करने को दिल करता है। जिला इंतजामिया की गफलत और बेहिसी के बायस करोड़ों रुपए मालियत का सामान जल गया है, जबकि आग पर ताहाल काबू ना पाया जा सका। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए JNN न्यूज।